بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ظلم اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے، جب انسان اپنی طاقت پر اتنا غرور کرتا ہے کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگے، تب اللہ کس طرح اپنے پیارے نبی کو بھیج کر انسانیت کو راہ دکھاتا ہے؟ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیارا واقعہ، جس میں صبر ہے، امتحان ہے، چمتکار ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے۔ مصر کی سرزمین پر ایک حکومت تھی، فرعون کی۔ فرعون صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ سوچئے، انسان ہو کر خود کو خدا کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رکھا تھا، غریبوں کو غلام بنا لیا، ان کے بچوں کو مار ڈالتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ ظلم اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کی آہیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ اسی دور میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہی بچہ جو آگے چل کر نبی بنے گا، اللہ کا رسول بنے گا، حضرت موسیٰ آس۔ لیکن فرعون کو خبر تھی کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس لیے اس نے حکم دیا ہر نوجات لڑکے کو مار دیا جائے۔ لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ جب موسیٰ آس پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اللہ نے وہ الہام دیا، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ذرا سوچئے، ایک ماں اپنے معصوم بچے کو ندی میں بہا رہی ہے، دل کانپ جاتا ہے۔ لیکن یہی اللہ پر یقین کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ دریائے نیل کی لہریں اس صندوق کو بہا کر کہاں لے گئیں؟ سیدھے فرعون کے محل کے پاس۔ فرعون کی بیوی آسیہ رجیون نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے مت مارو۔ یہی اللہ کا کرشمہ تھا کہ جسے فرعون مارنا چاہتا تھا، وہی بچہ اس کے گھر میں پلنے لگا۔ موسیٰ آس بڑے ہوئے، سمجھدار بنے۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ جاؤ، فرعون کو حق کی دعوت دو۔ سوچئے، ایک غلام قوم کا بیٹا جو کبھی ندی میں بہا دیا گیا تھا، آج سب سے بڑے ظالم کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، فرعون، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کی راہ پکڑو۔ لیکن فرعون غرور میں تھا۔ وہ کہتا تھا، موسیٰ، کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ تم میرے گھر میں پلے ہو؟ موسیٰ اور سوسیس نے جواب دیا، ہاں، میں تمہارے گھر میں پلا ہوں، لیکن میرا رب وہی ہے جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب فرعون نے دعوت حق ٹھکرائی تو موسیٰ آس نے اللہ کے چمتکار دکھائے۔ ان کی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہی اجگر بن گئی، ان کا ہاتھ چمکدار نور سے روشن ہو گیا۔ مگر فرعون اور اس کا دربار کہنے لگا، یہ تو جادو ہے۔ اس نے جادوگروں کو بلایا، سینکڑوں ہزاروں جادوگر۔ لیکن جب انہوں نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ آس نے اپنی لاٹھی پھینکی تو لاٹھی نے سب کچھ نگل لیا۔ سارے جادوگر سجدہ میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کا ظلم بڑھتا گیا، اس نے بنی اسرائیل کو ستایا، موسیٰ اور سیس اور ان کے ماننے والوں کو تنگ کیا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اور سیس اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں ہزاروں لوگ مصر سے نکلے، پیچھے پیچھے فرعون اپنی بڑی فوج لے کر دوڑا۔ سامنے تھا سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ قوم نے کہا، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن موسیٰ اسیس نے کہا، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، موسیٰ آس نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل صحیح سلامت پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کی فوج ان کے پیچھے آئی اور سمندر واپس مل گیا، ساری فوج ڈوب گئی۔ یہی اللہ کا انصاف تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، جب حالات ناممکن لگیں تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب ظلم اپنی حد سے بڑھ جائے تو اللہ کا قہر ضرور آتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے دریا میں بہانا پڑے، چاہے فرعون سے ٹکرانا پڑے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔ سوچئے، وہ قوم جو صدیوں سے غلام تھی، اب آزادی کی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ لیکن اللہ نے چاہا کہ انہیں صرف جسمانی آزادی نہیں
बल्कि रूहानी आजादी भी मिले। मूसा आस को हुक्म मिला कि तूरे सैना पर जाए और अल्लाह से हम कलामी करे। वह 40 रातों तक रोजे और इबादत में लगे रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें तौरेत दी, वह किताब जिसमें इंसानियत के लिए हिदायत थी। लेकिन उधर बनी इसराइल ने सब्र खो दिया। उन्होंने हारून असम से कहा, हमें भी एक खुदा चाहिए जिसे हम सामने देखकर पूजें। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। सोचिए कितनी बड़ी नाशुक्री थी यह। जिस अल्लाह ने उन्हें फिरौन के चंगुल से निकाला, उसी को छोड़कर बुत की पूजा। जब मूसा आस लौटे और देखा कि उनकी कौम गुमराही में पड़ गई है तो उनका दिल जल उठा। उन्होंने हारून आसपो से कहा, तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? हारून आसपो ने कहा, भाई मैंने कोशिश की लेकिन ये मुझे मार डालते। मूसा आस्ता बहुत दुखी हुए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या रब हमें माफ कर दे, हमें राह दिखा। अल्लाह ने रहमत से उनकी तौबा कबूल की और उन्हें फिर से सीधा रास्ता दिखाया। भाइयों और बहनों, हजरत मूसा आस वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह से सीधी हम कलामी का शरफ मिला। अल्लाह ने उनसे फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुम्हें अपने रसूलों और लोगों में से चुन लिया है। मेरी किताब लो और शुक्रगुजार बनो। सोचिए एक इंसान और अल्लाह के दरमियान सीधी बात। लेकिन जब मूसा अफसो ने कहा, या रब मुझे अपना दीदार कराओ, तो अल्लाह ने फरमाया, तुम मुझे इस दुनिया में नहीं देख सकते, पहाड़ की तरफ देखो। जब अल्लाह का नूर पहाड़ पर पड़ा तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा आस बेहोश होकर गिर पड़े। जागे तो बोले, या रब तू पाक है, मैं तुझसे तौबा करता हूं। मूसा आस की कौम बार बार गुमराही की तरफ जाती थी। कभी खाने पीने की शिकायत करती, कभी कहती हमें प्याज और मसूर चाहिए, हर रोज मन्ना सलवा क्यों? कभी अल्लाह के हुक्मों से नफरत करती। लेकिन मूसा आसैस सब्र करते और उन्हें समझाते, शुक्र अदा करो वरना तुम पर अल्लाह का कहर आएगा। जब बनी इसराइल को एक शहर में दाखिल होना था तो उन्होंने कहा, मूसा वहां तो बड़े बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, हम तो कभी अंदर नहीं जाएंगे। सिर्फ 2 ईमान वाले उठे और बोले, अल्लाह पर भरोसा रखो, जाओ अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन कौम ने इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया, तो जाओ 40 साल तक तुम रेगिस्तान में भटकते रहो। यही हुआ। बनी इसराइल तीसरे हिस्से की आजादी मिलने के बाद भी 40 साल तक रेगिस्तान तेह में भटकते रहे। भाइयों और बहनों, यह वाकया हमें यही सिखाता है, अल्लाह पर भरोसा हो तो दरिया रास्ता बन जाता है, सब्र करो तो रेगिस्तान भी रहमत बन जाता है, और अगर शुक्री न करो तो आजादी भी भटकन बन जाती है। भाइयों और बहनों, सोचिए एक पूरी कौम, हजारों लाखों लोग रेगिस्तान में भटक रहे हैं। चारों तरफ रेत, ऊपर तपती धूप, प्यास से सूखे होंठ, भूख से तड़पते बच्चे। लेकिन यह अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि बनी इसराइल ने अल्लाह पर यकीन नहीं किया था। फिर भी अल्लाह की रहमत देखिए, आसमान से मन्ना और सलवा उतरता, बादल उन्हें छाया देते, चट्टानों से पानी निकलता। यानी गुनाह के बावजूद अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा बंद नहीं किया। यहां हमें एक गहरा सबक मिलता है। इंसान गलती करता है, गुमराही में जाता है, लेकिन अगर सच्चा दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह रहमत फरमाता है। मगर जब इंसान बार बार वही गलती करे तो अल्लाह सख्त इम्तिहान में डाल देता है। मूसा आसिउस की कौम बेहद अजीब थी। वह बार बार अल्लाह के नबी को परेशान करती। कभी कहती, ऐ मूसा हमें अल्लाह को सामने दिखाओ, तभी हम ईमान लाएंगे। कभी कहती, हमें यह खाना क्यों दिया जा रहा है, हमें प्याज और मसूर चाहिए। सोचिए वह लोग जो गुलामी से आजाद हुए वह भी इतनी नाशुक्री कर रहे थे। मूसा आस सब्र करते और उन्हें समझाते, ए मेरी कौम, अल्लाह की रहमत को याद करो, शुक्र अदा करो और उसकी तरफ लौट आओ। एक दिन बनी इसराइल के कुछ लोग तौरेत की हुक्म को तोड़ बैठे। उन्होंने शनिवार सब्त के दिन मछलियां पकड़ ली, जबकि यह मना था। अल्लाह ने उनकी सूरतें बदल दी, उन्हें बंदर और सुअर बना दिया। भाइयों और बहनों, सोचिए अल्लाह की नाफरमानी कितनी बड़ी बात है कि इंसान की सूरत बदल जाए। ये वाकया हमें सिखाता है कि गुनाह इंसान को इंसानियत से गिराकर जानवर बना देता है।
रेगिस्तान में भटकते हुए बनी इसराइल थक गए। उन्होंने मूसा आइसेस से कहा, ऐ मूसा, क्यों ना हम यहीं एक बुत बना लें और उसकी पूजा करने लगें। मूसा आइसेस रो पड़े। उन्होंने कहा, क्या तुम इतने सालों में भी नहीं समझ पाए? अल्लाह ही असली मालिक है। लेकिन कौम की गफलत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह बार बार उसी तरफ लौटते। अल्लाह ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया कि तुम अमल करो, मेहनत करो और जिहाद करो। लेकिन उन्होंने कहा, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। सोचिए, नबी अपनी कौम को जन्नत की तरफ बुला रहे हैं और कौम कहती है, तुम जाओ, हम नहीं चलेंगे। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें 40 साल तक रेगिस्तान में भटका दिया। ये 40 साल सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि एक तरबियत, ट्रेनिंग थी, ताकि नई नस्ल पैदा हो जो अल्लाह पर यकीन करे। भाइयों और बहनों, हजरत मूसा औवास का एक प्यारा वाकया और भी है, उनका हजरत खिज्र औवास से मिलना। मूसा औवास ने सोचा कि उनसे बढ़कर कोई आलिम नहीं। अल्लाह ने कहा, एक बंदा है मेरे पास जिसके पास खास इल्म है, उससे मिलो। मूसा औवास सफर पर निकले और खिज्र और सफत से मिले। खिज्र और सफत ने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? मूसा और सोस ने कहा, इंशा अल्लाह मैं सब्र करूंगा। मूसा और सोस हर बार रोकते पूछते। आखिर खिज्र और सफ ने कहा, यह सब अल्लाह के हुक्म से था। नाव वाले गरीब थे, मैंने छेद इसलिए किया ताकि जालिम राजा उसे जब्त ना कर सके। बच्चा बड़ा होकर काफिर बनता, इसलिए अल्लाह ने उसे वापस बुला लिया। दीवार के नीचे खजाना था जो एक यतीम बच्चे का था, ताकि वह बड़ा होकर उसे पाए। सोचिए, कितना बड़ा सबक है यह। इंसान सोचता है कि यह क्यों हुआ, वह क्यों हुआ, लेकिन अल्लाह की हर तदबीर में रहमत होती है। हजरत मूसा आसे का पूरा वाकया हमें यह सिखाता है, सब्र करो क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है। जब दरवाजे बंद हों, अल्लाह समंदर में भी रास्ता बना देता है। जब लोग धोखा दें, तब भी अल्लाह अपनी रहमत से बचा लेता है। और जब हमें समझ ना आए कि यह क्यों हुआ, तो अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखो। भाइयों और बहनों, यह तो अभी और आगे बढ़ेगा। मैं अगले हिस्से में लिखूंगा मूसा आयस का आखिरी सफर, उनकी कौम की गलतियां और वह रहमतें जो आज भी हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। जब दरिया पार हो गया और बनी इसराइल सलामत दूसरी तरफ पहुंच गए, तो उनकी आंखों में अब भी फिरौन का खौफ ताजा था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अल्लाह ने उनके दुश्मन को दरिया की लहरों में डुबो दिया। लेकिन इंसान की फितरत है कि जल्दी भूल जाता है। कुछ ही दिनों में उनके दिलों में फिर दुनियावी ख्वाहिशें सिर उठाने लगीं। उन्होंने मूसा आसोस से कहा, ऐ मूसा, जिस तरह इन दूसरी कौमों के पास अपने खुदा की निशानियां हैं, वैसे ही हमारे लिए भी कोई खुदा बना दो जिसकी हम इबादत करें। उन्होंने गुस्से और दर्द के साथ कहा, अफसोस है तुम पर, तुम्हारा रब वही है जिसने तुम्हें फिरौन से निजात दी। तुम इतनी जल्दी अपने असली मालिक को भूल गए। तूरे सेना की तरफ सफर। फिर अल्लाह ने मूसा आयस को पुकारा, ऐ मूसा, मेरी किताब और हिदायत तुम्हें देने के लिए तूरे सेना पर आओ। मूसा आयस ने बनी इसराइल को अपने भाई हारून आयस के हवाले किया और खुद उस मुकद्दस सफर पर निकल पड़े। तूरे सेना की चोटी पर फिर वही नूर, वही जलाल और वही कलाम ए इलाही। अल्लाह ने उन्हें अलवाह तख्तियों पर अपनी हिदायतें अता की। ये वो वक्त था जब अल्लाह और उनके रसूल के बीच सीधा कलाम हुआ, एक अनोखा शरफ जो बहुत कम नबियों को नसीब हुआ। लेकिन पीछे बनी इसराइल सब्र न कर सके। समरी नाम के शख्स ने उन्हें बहकाया और सोने का बछड़ा बनाकर कह दिया, यही तुम्हारा खुदा है। और अफसोस, उनमें से बहुत से लोग उस बछड़े की पूजा करने लगे। जब मूसा अस लौटे और उन्होंने यह नजारा देखा, तो उनका दिल गुस्से और गम से जल उठा। उन्होंने अलवाह जमीन पर पटक दी और अपने भाई हारून आयस की दाढ़ी पकड़ ली। तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? हारून आयस ने कहा, भाई, मैंने भरसक कोशिश की, लेकिन यह कौम मेरी न सुनती थी। मुझे डर हुआ कि कहीं यह लोग बढ़ न जाएं। मूसा आयस को गुस्सा ठंडा हुआ। उन्होंने तौबा की और अपनी कौम के लिए दुआ की, ऐ मेरे रब, इनकी गुमराही को माफ कर और हमें फिर अपनी रहमत से ढांप ले। और यहीं से बनी इसराइल के सफर में नए इम्तिहान शुरू हुए।
कभी खाने पीने की शिकायत, कभी प्यास की पुकार, कभी सब्र की कमी, कभी दुनिया की चाहत। लेकिन हर बार मूसा आसैस अपने रब की तरफ रूख करते और अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें रास्ता दिखाता। दरिया पार करने के बाद और तूरे सेना से लौटने के बाद बनी इसराइल को एक नई जिंदगी मिली थी। लेकिन इंसान की आदत है, जितनी भी नेमतें मिलें वो जल्दी भूल जाता है। एक दिन उन्होंने मूसा आस से कहा, ऐ मूसा, हम तो सिर्फ एक ही खाने से थक गए हैं, हमारे लिए जमीन से उगने वाली सब्जियां, मसूर, प्याज और खीरा लाओ। मूसा आयस ने अफसोस से कहा, क्या तुम उस चीज को चाहते हो जो कमतर है, उस चीज के बदले जो बेहतर है? अल्लाह ने तुम्हें आसमान से मन्न और सलवा दिया, लेकिन तुम्हारे दिल को वो भी रास नहीं आया। इसके बावजूद अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें रोजी दी। आसमान से मन्न मीठा खाने जैसा और सलवा खास परिंदा उतरता ताकि उनकी जरूरत पूरी हो जाए। सफर में जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने फिर शोर मचाया, ऐ मूसा, हमें पानी दो। मूसा आस ने अपने असा लाठी से पत्थर पर चोट मारी और उसमें से 12 सोते फूट पड़े। हर कबीले के लिए एक सोता, यानी अल्लाह ने उन्हें सिर्फ पानी ही न दिया बल्कि इंसाफ और आसानी के साथ दिया। फिर भी बनी इसराइल सब्र न कर सके। कभी कहते, हमें मिस्र की पुरानी जिंदगी चाहिए, कभी कहते, हमारे लिए कोई खुदा बना दो, कभी कहते, ऐ मूसा, तू और तेरा रब जाकर लड़ो, हम यहीं बैठे रहेंगे। मूसा इसका दिल बार बार टूटता, लेकिन वो अपने रब की तरफ रूख करते और कहते, ऐ मेरे मालिक, ये मेरी कौम है, इनके गुनाह माफ कर, क्योंकि तेरी रहमत का कोई मुकाबला नहीं। हर बार बनी इसराइल की नाफरमानी के बावजूद अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें बचाता और संभालता रहा। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था, अभी और इम्तिहान आने वाले थे। बनी इसराइल को जब मन और सलवा, पानी और निजात जैसी नेमतें मिली तो उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए था। लेकिन इंसान की फितरत अक्सर शिकायतों में घिर जाती है। इसी तरह उन्होंने बार बार अपनी ख्वाहिशों और नाफरमानियों से मूसा आस का दिल दुखाया। जब मूसा आस तूरे सेना पर गए तो अल्लाह ने उन्हें 40 रातों का वादा दिया। ये वो लम्हे थे जब कलामे इलाही होता था, लेकिन पीछे बनी इसराइल सब्र न कर सके। समरी ने उन्हें धोखे से बहकाया और सोने का बछड़ा बनाकर कह दिया, यही तुम्हारा खुदा है। कौम के बहुत से लोग इस फितने में फंस गए। हारून असा ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने उनकी बात न मानी। जब मूसा आस लौटे और उन्होंने ये मंजर देखा तो उनका दिल जल उठा। उन्होंने अलवाह तख्तियां पटक दी और हारून असौ से शिकायत की। फिर उन्होंने कौम से कहा, तुमने अपने रब से किया हुआ वादा तोड़ दिया, अब अपने गुनाहों पर तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो। लेकिन कौम इतनी गाफिल थी कि उन्होंने कहा, हम तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को आमने सामने न देख लें। मूसा आस गिर पड़े और अपने रब से पुकारा, ऐ मालिक, अगर तू चाहे तो इन्हें हलाक कर दे, लेकिन यह तेरी रहमत के खिलाफ है, हमें माफ कर दे और हमें हिदायत दे। अल्लाह ने फिर रहमत की और उन्हें जिंदा रहने का मौका दिया। मूसा अससिया को अलवाह में अल्लाह के हुक्म और शरीयत दी गई। उन्होंने कौम को इकट्ठा किया और कहा, यह किताब है जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगी, इसे मजबूती से पकड़ो और उस पर अमल करो। लेकिन बनी इसराइल के दिलों में सख्ती थी। वो बार बार कहते, ये बहुत मुश्किल है। तब अल्लाह ने तूर पहाड़ को उनके ऊपर उठाया मानो उनकी छत हो गया हो और उनसे कहा, अगर तुमने किताब को मजबूती से न पकड़ा तो यह पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा। डर के मारे उन्होंने हामी भर दी, लेकिन उनके दिलों में अब भी कमजोरी बाकी थी। सहरा की गर्मी, लंबा सफर और दुनियावी ख्वाहिशों की तलब ने बनी इसराइल को बार बार गुमराही की तरफ खींचा। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, हमें वह जमीन दिखाओ जहां दूध और शहद बहता हो, हम और सफर नहीं कर सकते। मूसा आस ने कहा, यह अल्लाह का वादा है, तुम्हें सब्र करना होगा, वादा पूरा होगा, लेकिन इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। इस तरह बनी इसराइल बार बार इम्तिहान में गिरे, लेकिन हर बार अल्लाह की रहमत उन्हें संभालती रही और मूसा औस एक सच्चे नबी की तरह
अपने रब की तरफ रुख करते और उनकी शफात करते। जब बनी इसराइल बार बार शिकायतों और नाफरमानियों में उलझ रहे थे, तब अल्लाह ने उन्हें एक नई जमीन का वादा दिया, अर्ज़े मुक़द्दस सरजमीन। मूसा आसी ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यह सरजमीन मुकर्रर कर दी है, चलो और इसे अल्लाह के नाम पर फतह करो, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन बनी इसराइल का दिल फिर कांप गया। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, वहां तो बड़े बड़े जालिम और ताकतवर लोग रहते हैं, हम कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तू और तेरा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे रब, मेरे पास अपनी जान और मेरा भाई हारून के सिवा कोई नहीं, अब तू ही हमारे और इन नाफरमानों के बीच फैसला कर। तब अल्लाह का हुक्म आया, इन पर 40 साल तक सहरा की भटकन लिख दी गई है, यह इधर उधर भटकते रहेंगे और सरजमीन ए मुकद्दस में दाखिल नहीं हो पाएंगे। और इस तरह बनी इसराइल को सब्र और इताअत का इम्तिहान मिला। 40 साल का लंबा सफर, रेगिस्तान की गर्मी, रेत का समंदर, कौम की नाफरमानियां, सब मिलकर मूसा असन की जिंदगी का सबसे कठिन दौर बन गया। लेकिन अल्लाह की रहमत साथ थी। जब भूख लगी तो आसमान से मन्न और सलवा उतारा गया। जब प्यास लगी तो मूसा आस ने अपनी लाठी से पत्थर पर मारा और 12 चश्मे फूट पड़े। हर कबीले के लिए एक सोता था ताकि कोई तकरार न हो। अल्लाह ने उनके ऊपर बादलों का साया कर दिया ताकि सूरज की गर्मी उन्हें झुलसा न सके। लेकिन इसके बावजूद उनकी जबान से शिकायतें खत्म नहीं हुई। कभी कहते, हम मिस्र की जिंदगी चाहते हैं, कभी कहते, हम अब थक गए हैं, कभी कहते, ऐ मूसा, हमें वही सब्जियां, प्याज और मसूर चाहिए। मूसा आसस हर बार सब्र से काम लेते और रब की तरफ दुआ करते, ऐ मालिक, यह मेरी कौम है, तेरी रहमत के बिना इनका कोई सहारा नहीं। और इस तरह बनी इसराइल 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। ये सफर उनके लिए एक तालीम था, सब्र, शुक्र और इताअत की तालीम। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग इस तालीम से भी न सुधरे। हजरत मूसा आसस और बनी इसराइल की कौम की हिजरत का सफर एक आसान सफर नहीं था। यह रास्ता इम्तिहानों, सब्र और यकीन का था। जब फिरौन की फौज समंदर में डूब गई और बनी इसराइल सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए तो सबने चैन की सांस ली। लेकिन चैन हमेशा इंसान के दिल को गाफिल कर देता है। मूसा आस की कौम को अल्लाह ने वह नेमतें दी जिनका कोई अंदाजा नहीं। आसमान से मन्नो सलवा उतरा, मीठा और हल्का खाना जो न भूख से भारी करता था न जिस्म को थकाता था। पत्थरों से पानी फूट निकला, हर कबीले के लिए अलग अलग धारा। लेकिन इसके बावजूद कौम के कुछ लोग शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, हर रोज यही खाना, यही मन्न ओ सलवा, हमें प्याज, मसूर, सब्जी और मसाले चाहिए, हमें वही चाहिए जो हम मिस्र में खाते थे। मूसा अलैस का दिल टूटा। उन्होंने जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, क्या तुम बेहतर चीज को छोड़कर घटिया चीज की तरफ लौटना चाहते हो? ये नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं, इनका शुक्र अदा करो। अगर यह सब चाहिए तो वापस जाकर जमीन में मेहनत करो और वही सब पैदा करो। मगर याद रखो, अल्लाह की दी हुई चीज हमेशा बेहतरीन होती है। ये वाकया इंसान की फितरत को दिखाता है। इंसान जल्दी नेमतों को भूल जाता है और छोटी छोटी ख्वाहिशों में उलझ जाता है। फिर एक और बड़ा इम्तिहान आया। अल्लाह ने मूसा आयस को तूर पर्वत, माउंट सीनाई पर बुलाया ताकि वह तौरेत, अल्लाह की किताब प्राप्त करे। मूसा आयस 40 दिन के लिए कौम को अपने भाई हारून आयस के हवाले करके चले गए। इस दौरान बनी इसराइल के कुछ लोग गुमराही में पड़ गए। सामरी नाम का एक आदमी सोने का बछड़ा बनाकर लाया और लोगों से कहा, यह तुम्हारा खुदा है, और मूसा भूल गया है कि यही असली मालिक है। कुछ लोग उस बछड़े की पूजा करने लगे। हारून अस ने उन्हें बहुत समझाया, ऐ मेरी कौम, ये तो बस एक मूरत है, इसमें न जान है न ताकत, इसका सजदा मत करो, सिर्फ अल्लाह का सजदा करो। मगर बहुत लोग नहीं माने। जब मूसा अस लौटे और उन्होंने अपनी आंखों से यह मंजर देखा तो उनका दिल गुस्से और दर्द से भर गया। उन्होंने तौरेत की तख्तियां नीचे फेंक दी और हारून असम से कहा, ऐ मेरे भाई, तूने इन्हें क्यों नहीं रोका? हारून ऐसो ने कहा, ऐ मेरे भाई,
मैंने रोका था मगर डर था कि कौम फूट में पड़ जाएगी। सब्र कर, ये सब गुमराही में पड़ गए। मूसा यसू ने सामरी को बुलाया और कहा, तूने ये क्या किया? सामरी ने जवाब दिया, मेरे दिल ने यही ख्याल डाला और मैंने इसे ढाल दिया। मूसा आसाप ने उसे लानत किया और कहा, अब से तू जिंदगी भर कहेगा, मुझे हाथ मत लगाओ, और तेरी सजा यह है कि आखिरत में तेरा कोई सहारा नहीं होगा। यह वाकया दिखाता है कि जब इंसान सब्र खो देता है और जल्दबाजी करता है तो गुमराही उसके दिल में घर कर लेती है। मूसा आईएसएस अपनी कौम को अल्लाह की तरफ लौटाना चाहते थे। उन्होंने तख्तियां उठाईं और तौरेत का पैगाम सुनाया, लेकिन बनी इस्राएल के कुछ लोग फिर भी बहस करते रहे। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, हम तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को आमने सामने न देख लें। ये सुनते ही आसमान से बिजली कड़क कर गिरी और वह सब गिर पड़े। मूसा और यसू ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर तू इन सबको हलाक कर देगा तो लोग कहेंगे कि तूने इन्हें मिस्र से निकालकर सिर्फ मौत के लिए लाया। इन्हें माफ कर दे ऐ रहमत वाले। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें जिंदगी वापस दी। इसके बावजूद कौम के दिल सख्त रहे। अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पर तूर पर्वत को उनके ऊपर उठा लिया और कहा, यह किताब और यह अहकाम पकड़ लो मजबूती से, अगर फिर गुमराही करोगे तो पहाड़ तुम्हें कुचल देगा। उस वक्त डर से सब सजदा में गिर गए और इकरार किया, मगर इंसान की फितरत बदलना आसान नहीं होता। बनी इस्राएल की सफर की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जब उन्हें पवित्र सरजमीन बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने का हुक्म मिला तो उन्होंने कहा, है मूसा, वहां तो ताकतवर लोग रहते हैं, हम वहां कभी दाखिल नहीं होंगे जब तक वो लोग बाहर न निकल जाएं। तू और तेरा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मूसा आयस का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को तेरे रास्ते पर बुलाया मगर यह नहीं मानते। अब मेरे और इनके बीच हुक्म फरमा। अल्लाह ने फरमाया, तो यह जमीन इन पर 40 साल तक हराम है। ये लोग रेगिस्तान में भटकते रहेंगे। तू और तेरे सच्चे साथी रहमत के साए में रहोगे। इस तरह बनी इस्राइल 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहे। उस दौरान मूसा और पौसा ने उन्हें तालीम, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। रेगिस्तान की तपिश, भूख और प्यास से भरे सफर में बनी इस्राइल के लिए हर दिन एक नया इम्तिहान था। 40 साल का यह दौर सिर्फ सज्जा नहीं था बल्कि तालीम और सबक का सिलसिला था। अल्लाह चाहता था कि यह कौम गुलामी की मानसिकता से निकलकर एक ऐसी उम्मत बने जो सब्र, शुक्र और ईमान में मजबूत हो। मूसा आईएस का किरदार इस रेगिस्तान में उस नूर की तरह था जो अंधेरों में राह दिखाता है। जब कौम थक जाती तो वह कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब फिरौन की तलवारें हमारे पीछे थीं और सामने समंदर था, तब भी उसी ने हमें बचाया। क्या तुम भूल गए? जो रब उस वक्त हमारी मदद कर सकता है वही आज भी कर सकता है। लेकिन इंसानी फितरत फिर वही सवाल करती। कोई कहता, ऐ मूसा, हम कब इस रेगिस्तान से निकलेंगे? कोई कहता, हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे ख्वाब कहां पूरे होंगे? मूसा आक्सास हर बार सब्र की तलवार से इन सवालों को काटते। वह समझाते, यह रेगिस्तान दरअसल तुम्हारे दिलों का आईना है। जब तक तुम्हारे दिल साफ नहीं होते, अल्लाह तुम्हें उस पवित्र जमीन में दाखिल नहीं करेगा। याद रखो, सफर सिर्फ पैरों से नहीं होता, सफर दिल से भी होता है। इस तरह मूसा असैसई ने उन्हें अल्लाह की तरफ मुतवज्जह किया। इस दौरान बनी इस्राएल में एक और इम्तिहान आया। एक बार उनकी कौम में प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ी कि लोग बगावत के करीब पहुंच गए। उन्होंने मूसा औसफ से कहा, ऐ मूसा, हमें पानी चाहिए। अगर तू वाकई अल्लाह का पैगंबर है तो हमें पानी ला दे। मूसा आस ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वह अपनी लाठी से एक बड़े पत्थर पर वार करें। जैसे ही उन्होंने आसा से पत्थर को मारा, उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीला अपने अपने चश्मे से पानी पीने लगा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर अफसोस, चंद दिनों बाद फिर वही शिकायतें शुरू हो गईं। कभी खाने की, कभी रास्ते की, कभी तकलीफ की। मूसा आईएस ने कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुम हर रोज अल्लाह की निशानियां देखते हो और फिर भी शिकायत करते हो?
کیا تمہیں ڈر نہیں کہ کہیں یہ نعمتیں چھن نہ جائیں؟ لیکن انسانیت کی عادت یہی ہے، جب تک مصیبت ہو تب تک یاد آتی ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بھول جاتی ہے۔ ریگستان کی اسی زندگی میں ایک واقعہ ہوا جو انسان کی نفسانی کمزوری کو دکھاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک دور ایسا آیا جب وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اور پھر سوال اٹھا، اب اس قاتل کو کیسے پکڑا جائے؟ ہمیں کوئی ثبوت نہیں۔ انہوں نے موسیٰ آسد سے کہا، تو اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے بکرا کو ذبح کرو، مگر قوم نے اس آسان حکم کو مشکل بنا دیا۔ انہوں نے سوال پر سوال کیے، کیسی گائے ہو، کس رنگ کی ہو، کتنی عمر کی ہو؟ موسیٰ آئس ہر بار جواب دیتے، اور ہر جواب سے ان کا کام اور مشکل ہوتا گیا۔ آخرکار انہوں نے ایک پیلی گائے ڈھونڈی جو بالکل ویسی تھی جیسی اللہ نے بتائی تھی۔ جب اسے ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت سے قتل ہوئے شخص کے جسم کو چھوا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام لے لیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی تھا، مگر اس کے بعد بھی بہت لوگ کہنے لگے، یہ تو بس جادو ہے، یعنی اللہ کی آیتیں دیکھنے کے بعد بھی دل سخت ہی رہا۔ موسیٰ اس کے دل کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو دیکھ دیکھ کر روتے رہتے۔ کبھی کہتے، اے میری قوم، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ کتنی بار اللہ نے تمہیں زندگی دی جب تم مر چکے تھے، کتنی بار تمہیں دشمنوں سے بچایا، کتنی بار تمہیں نعمتیں دیں، پھر بھی تمہارا دل گمراہی کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ ریگستان کی راتیں گواہی دیتی تھیں کہ موسیٰ اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کر دعا کرتے۔ وہ کہتے، اے میرے مالک، میں اپنی قوم کو تیری طرف بلاتا ہوں، مگر ان کے دل بند ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اے اللہ، انہیں ہدایت دے۔ اور اللہ کی رحمت یہ تھی کہ اس صبر اور دعا کی وجہ سے بنی اسرائیل دھیرے دھیرے بدلنے لگی۔ ان کے اندر ایک نیا یقین پیدا ہونے لگا۔ انہوں نے سمجھا کہ سفر صرف جگہ کا نہیں، دل کا بھی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور سے ضرور کریں۔ اگر اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہے۔ دھنیواد۔